ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵ ਆਊਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਟ ਰਿਟੇਨ ਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਰਦੂ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਕਿੰਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ 20 ਲੱਖ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ ਛਪਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਾੜ ਪਾੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬਣਾ ਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਬਣਾ ਤਾ। ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਰਦੂ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਅਰੇਬਿਕ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹਨੇ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ personality from the film world to be invited by JNU to give the convocation address. ਉਹ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਐਡਰੈਸ ਵਾਜ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਔਰਸ 1972 ਦਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਸਪੀਕਸ ਫਰੋਮ ਹਿਸ ਹਾਰਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੌਨੀ ਵਾਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ बलराज जी देखिए क्या हालत है, वो ऑलरेडी रेडियो कहते हैं अब समाचार में हिंदी सुनिए, हिंदी में समाचार नहीं, अब समाचार में हिंदी सुनिए, तो पाकिस्तान वाले वो ख़बरों में उर्दू सुनिए। ये हालत है कि ऐसे उन्होंने उर्दू अपना अंदर लफ्ज़ यूज़ करते, असी अपना हिंदी कर रहे हैं। विद द रिज़ल्ट हिंदुस्तानी भी ख़त्म हो गई और आपस दे विच। अच्छा इहो चीज़ पंजाबी मैं जिहड़ी पंजाबी लाहौर जाके बोलदा, इन्ने खुश हुंदे हो, कहते तुहाडी बोली सानू याद करा दी। मैं की याद करनी, बजुर्ग याद आ जांदे। हुण कहंदी साडे पंजाबी होर तरह हो गई। मैं कहा साढ़े पासे भी है, मैं अंमृतसर जाना, मैंने पंजाबी चंगी नहीं लगती। मैं कहा वो ख़त्म हो गई हैं, क्यों? पोलिटिसाइज ये वोट ये चीज़ां ने बर्बाद किया कि पंजाबी ऐसी बोलो जिहड़ी कि हिंदी स्पीकिंग समझ सकन। पुछो कि इन्ना की तुहानूं पिया है कि हिंदी दे लफ्ज़ इन्ने वाड़दे पंजाबी दे विच जिहड़े अजीब लगदे बिल्कुल, लेकिन वो तुसीं चाहते हो कि नहीं यार चीज़ है कि रेडियो दी खबरां दूजे वालियां नूं भी समझ आ जान। सो ये जिहड़ा तरीका वा हर चीज़ नूं ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਰੰਗ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਇਟਸ ਏ ਜੋਵੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਸੇ, ਫੁੱਲ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਫੁੱਲ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਕੁਵੈਂਟਰੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਰੋਮਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਰਦੇ। ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਗੋਰ ਉਹ ਗੁਰੂਦੇਵ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੋਇਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਐਸੀ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਾਈਲ ਫੜ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਉਹ ਬਲੈਂਕ ਵਰਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੱਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਈਡੀਆ, ਅਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸਰਕਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੌਡੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੰਟੈਂਟ ਠੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਲੈਕਚਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਪੇਂਟਰ ਦੇਖੋ
ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ 20th ਸੈਂਚਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਵਾਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੇਂਟਰ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਕ੍ਰਿਟਿਕ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਬਰਥ, ਇਹ ਹੈ ਡੈਥ, ਇਹ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰੋ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈ ਪੈਂਟ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਿੱਪੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰੇ ਰਾਮਾ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਬਾਹਰ, ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਆ ਗਿਆ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਡਰੈਸ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਨੌਟ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਕਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਯੋਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਗੰਜੇ ਕਰਕੇ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਨੌਟ ਪੇਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੀਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨੀਵੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹਸਤੀ ਸੀ। ਆਲਦੋ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ 5ਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਛਾਪੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਖਰੀਦਿਆ ਇੱਥੇ ਪੈਂਗੁਇਨ ਕੋਲੋਂ। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਐਲਮਾ ਮੈਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਔਰ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਟੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਵਾइस ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਨ ਨੇਵਲ ਦੂਜਾ ਓਲਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਆਫਟਰ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। 1960 'ਚ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਾਦਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਯੂਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦਾ। ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੋਸਤ ਆ ਅਖਤਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1960 'ਚ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ 1960 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੰਬੇ 'ਚ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੰਬੇ ਸੀ। ਐਨੀਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ 1960 'ਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਟਰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਮੋਟਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਮਲਕਾ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵੱਲ ਮਾਲ ਰੋਡ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰ ਚਲਾਤੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਟਰਲਿੰਟਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੋਹਣੀ ਰੋਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ। ਐਨੀਵੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੈਨ ਆਈ ਕਿਡਨੈਪਡ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਸ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਛਾਪਿਆ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਛਾਪਿਆ ਦ ਡੇ ਆਈ ਕਿਡਨੈਪਡ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ। ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਛਾਪੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ
अपना उत्थे प्रिंट आउट अपना अखबार छपया सी, ਉਹਦੀ कटिंग मैनू उन्हें भेजी तो वो मैं फोटो कापी करके तुहानू दिखाने ले लिया। The day I kidnapped Balraj Sahni, and he is such a great photographer, amateur है। Akhtar Mirza, he is well also काफ़ी senior in age, must be nearing 80 now, और उन्हें उन्हें घंटा डेढ़ घंटा स्पेंड किया और लिखिया किस तरह मैं फड़िया, किस तरह मैं लैके गया, किस तरह उन्हें ही वाज सो फ्रेंडली। फिर उन्होंने घंटे बाद छड्डिया उत्थे उत्थे उहदी मोटर जिहड़ी लैन आई सी वो इंतज़ार कर रही सी। एनीवे जी ब्रीफली ये कहना स्थान। थैंक यू वेरी मच। नहीं अब और उन्हें भी तो बोलना है ना। अब बीच में कोई सवाल जवाब होगा। हुणे बोलते रहन तो सुनते रहिए। वाकई इदां दा प्राण होना ने समा बन्निया। और बलराज साहनी नूं मैं जदों बोल रहे सी तो मैं सोच रहा सी कि किद्दां असीं याद करते हैं। जिद्दां इन्हां ने उन्हां दे हम जमातां दा जिक्र किया, फैज़ उन्हां दे हम जमात सी, होर लोगों ने। तो मैनू याद आउण डिया सी, मैं साल को पहला मैं तो डॉक्टर महिंदर सिंह हुणां नाल लैके तारक अली हुणां दी इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू जी स्क्रिप्ट की इन्हां गल की, उहदे च तारक होनी बड़े भावुक हो गए। कहिंदे यार किहड़ी गल सी जे असीं सारे ही गुरमुखी जिहड़ी है स्क्रिप्ट सीख लेंदे, एडी कोई गल नहीं सी। तो मैं उन्होंने कहा स्क्रिप्ट की एडी कोई गल नहीं है, सानू भी जी स्क्रिप्ट उर्दू वाली सानू भी आउंदी सी, ये स्क्रिप्ट की एडी कोई गल नहीं। भगत सिंह कहता होंदा सी देवनागरी च लिख लेंदे आ, बलराज होनी कहते रोमन च लिख लेंदे आ, स्क्रिप्ट की एडी गल नहीं। वड्डी गल तो सांझ जिहड़ी बोली दी है पंजाबी बोली दी। जदों इंटरव्यू खत्म होने वाली सी ते तारक होनी असीं तारक होना को सवाल पूछण डे सी, उस तो बाद उन्होंने सानू सवाल पूछने शुरू करते। सवाल पुछते पुछते गल फिल्मां ते आ गई, वो ईरान दीयां फिल्मां दी गल करन लग पे। फिर होर गल करते, फिर एक सवाल पुछया सी ते बलराज हुणां ने की कीता फिर पंजाबी फिल्मां बारे ते पंजाबी नाटक बारे। तो फिर मैं उन्होंने दस्सिया तो किद्दां बलराज हुणां ने पंजाबी च नाटक करते रहे। तो ये गल मैनूं अज ये गल जिहड़ी है याद आ रही है भी तारक अली हुणां ने मतलब स्पैशल सवाल आउट ऑफ बिल्कुल जी इंटरव्यू जा रही ही, उस तो बाद उन्होंने पूछा कि बलराज हुणां ने की कीता फिर, कि बलराज उन्होंने वास्ते एक शख्सियत ही कि उन्होंने की कीता पंजाब दे विच भी, ये सानूं दसो। तो मैं जदों मैंने दस्सिया कि वो नाटक उपरली मंजिल ते दूसरे नाटक पंजाबी दे खुद करते रहे हैं, तो वो बड़े हैरान होए कि बलराज हुणी नाटक करते रहे हैं। तो इस तो बाद मैं बेनती करांगा अनीस आजमी हुणां नूं कि वो अपना कीनोट एड्रैस देन। अनीस आजमी हुणी इप्टा दे नाल बड़े गहरे तौर पर जुड़े रहे हैं और भीशम साहनी हुणां दे नाल जिहड़ी है अनीस हुणां दी बहुत सांझ रही है। तो मैं उन्होंने कहूँगा कि जो बोलना है वो भी बोलन, पर यादां जिहड़ियां वो सांझियां करन, वो सब तो ज़्यादा सानू उन्हां तो ये है। अनीस आजमी जी। मिर्ज़ा जी, प्राण साहब से मैं ये गुजारिश कर रहा था कि वो खामोश क्यों हो गई, ये सिलसिला अभी और यादों का जो उनका है बहुत ही खूबसूरत था। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं पंजाबी नहीं बोल सकता, समझ लेता हूँ और बहुत ही मज़ा भी आता है, खूबसूरत भी लगती है, लेकिन बोलूँगा तो आप सब हंसने लगेंगे, इसलिए बोल नहीं सकता। और सुराजबीर साहब और रवेल जी ने हुक्म दिया है इसलिए मैं हाजिर हुआ हूँ। बलराज साहनी साहब से मेरा ताल्लुक़ ये था कि एमरजेंसी में एक थिएटर ग्रुप कायम हुआ था दिल्ली में, उस गुस्से में प्रयोग नाम से, जिसने सोशली कमिटेड प्लेस का एक सिलसिला शुरू किया था जो 18 साल तक रहा कायम। और जुलूस पहला प्ले था, वो पूरा गम और गुस्सा एमरजेंसी में निकल कर आया था। और वो ग्रुप जब बना तो उसके सदर बने थे प्रेसिडेंट बलराज साहनी, जो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक रहे। और मैं उसका इत्तेफाक से बहुत छोटा सा अदना सा आदमी था, ट्रेजरर था और ट्रेजरर हूँ। आज भी वो ग्रुप किताबों में है और उसके खातों में इतने लाख रुपए हैं कि शायद दिल्ली में शायद किसी और ग्रुप के पास ना हो। बहरहाल वो सिलसिला था और बलराज जी से तो हम कभी मिले नहीं, उनसे फिल्मों के हवाले से या उनकी किताबों के हवाले से उनको देखा और जाना, लेकिन भीष्म जी से मुलाकातें बहुत होती थी और हम
बहुत मामूली लोग थे, लेकिन वो इतने बड़े दिमाग के आदमी थे कि हमको भी मुंह लगाते थे। और घर पे भी जब कभी जाना होता तो बैठो यार मैं टप्पा गा रहा हूँ, तुझ गाओ मेरे नाल। और शीला जी उनके साथ गाती थी और हमको बैठ के अपने हाथ से नहीं चाय में बनाना, तुझ बैठो। ये सब जो था लाड प्यार, वो बड़ा अजीब सा लगता है कि भीष्म साहनी इतना बड़ा आदमी और वो मेड भी घर में है कि नहीं 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 वो शीला तू उन्होंने रहने दो, मैं बनानी चाहे। तो अजीब सा एक प्यार था। मेरे ख्याल से बल्लाद जी भी बिल्कुल ऐसी स्वभाव के रहे होंगे कि ये दोनों भाई, और ख़ास तौर से वो पूरे हालात को अगर देखिए तो पार्टीशन जो हुआ, मेरे ख्याल से दुनिया की तारीख़ में इससे ज़्यादा दर्दनाक कोई भी माइग्रेशन या पार्टीशन नहीं हुआ। और बल्लाद जी से जब मैं मतलब सुनता था उनके बारे में और भीष्म जी से जब बातें होती थी तो लगता था ये कितने बड़े दिमाग के आदमी हैं। ज़्यादातर पंजाबी मैंने ऐसे ही देखे हैं जिन्होंने इतनी बर्बादी देखी, इतना खून खराबा देखा, लेकिन होश हवास कायम रखे, इंसानियत को जिला बख्शते रहे। और जितनी अच्छी कहानियाँ उस पार्टीशन के दर्द से निकल कर आई हैं शायद दुनिया के किसी और ख़ित्ते में नहीं निकली होंगी। और फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर बल्लाद जी का, फिर उसके बाद कम्युनिज्म की तरफ आना, इप्टा ज्वाइन करना, और जो बेचैनी पूरी ज़िंदगी में उनके रही है कि आप देखिए हर 3-4 साल पर मतलब शांति निकेतन भी जा रहे हैं, बीबीसी ज्वाइन कर रहे हैं, इप्टा ज्वाइन कर रहे हैं, फिर इधर आए। और फिर जिस तरह से अभी प्राण साहब बता रहे थे 72 का जो उनका लेक्चर था कन्वोकेशन में, हमको अभी भी जहनों में कुछ कुछ याद है कि सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे न्यूज़ थी कि कमाल हो गया, इतनी नीचे आ गए लोग कि अब एक फिल्म स्टार, एक फिल्म एक्टर आके जो है वो कन्वोकेशन में जीन्यू करेगा। और उसके बाद हम सब ने देखा, याददाश्त में अभी है कि जैसा कि प्राण साहब ने भी फरमाया कि उतनी खूबसूरत स्पीच शायद आज तक जेएनयू में दोबारा किसी ने दी। मतलब एक इंटेलेक्चुअल जब जाहिर है कि जब बात करेगा, जिसने इतना कुछ देखा हो और इंसानियत के इतने रंग रूप देखे हों, इंसानियत तो उनमें जो थी वो तो गज़ब की थी। क्योंकि फिल्म दुनिया में अगर आप जाइए तो लोग अजीब अजीब किस्से कहानियाँ सुनाते हैं कि बल्लाद साहनी को जो पहली फिल्म मिली और ज़ाहिर उसमें पैसे नहीं मिले थे, लेकिन फिर धीरे धीरे काम करते करते उनको जब कुछ पैसे मिलने लगे तो जिस पनवाड़ी से वो सिगरेट लिया करते थे अक्सर कहते थे कल दे दूँगा पैसे। तो जब उनके हाथ में पैसे आए तो कहा कि यार तू यार झल्ली से लेकर घूमता रहता है पान और सिगरेट की, तो दुकान कर ले। और उसको पैसे दिए कि ये मुझे पहली बार आज आमदनी हुई है तो एक छोटी सी दुकान खोखा कर ले। तो ये जो किरदार है कि एक आदमी जब पैसा कमाता है तो बीबीसी ये नहीं कहता कि तू कड़े बना ले, बल्कि एक आदमी जिसकी कोई वजूद कोई पहचान नहीं है उसको जाकर दे रहे हैं पैसे कि तू अपनी छोटा सा खोखा कर ले। थिएटर में भी जो उनका कमिटमेंट है, जो याददाश्त है हबीब तनवीर की जिन्होंने लिखी है कि 1949 में पूरा वीक था इप्टा के प्लेस का इलाहाबाद में, और हबीब साहब उस रोल को ठीक से निकाल नहीं पाते थे, उसमें बिलक के रोना था वो डायलॉग बोलते हुए। भीष्म जी डायरेक्ट कर रहे थे और उन्होंने बार बार कहा कि हबीब नहीं निकाल रहा तू कैरेक्टर, नहीं निकल पा रहा है, और कर, कोशिश कर। नहीं हुआ। उसके बाद इतनी जोर का तमाचा मारा उन्होंने हबीब तनवीर को कि वो गिर गए। और जब गिरे तो 5 उंगलियां चेहरे पे उनके गाल पे थीं और उनका बोल। तो वो लोगों ने कहा कमाल कर रही है, मतलब वो आदमी को सांस तो लेने दो, कैसे बोलेगा वो। हबीब साहब ने रोते हुए बिलक के बोला कि दैट्स द मूड, आई वांट दैट मूड। हबीब साहब ने मेमोयर्स में लिखा इस किस्से को, आप पढ़ेंगे तो ये जो कमिटमेंट था, ये एक जुनून, एक पागलपन जो था बल्लाद जी में, वो हमेशा रहा। और खुदा ने उम्र इतनी कम दी कि शायद मतलब बहुत ही अफसोसनाक है। और कहा जाता है कि बीवी की मौत और फिर बाद में आखिरी में बेटी की मौत जो है उनको ले डूबी, और वो बहुत ही इमोशनल हुए थे शबनम की मौत के बाद से। मुझे हुक्म दिया था कि मैं इप्टा के बारे में कुछ यहाँ लिखूँ, और उसके बाद हुआ कि मदन गोपाल सिंह हमारे बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं, और उन्होंने जब आप तो बहुत मशहूर सूफी सिंगर हैं, पहली बार जब गाया था तो वो हमारे थिएटर में ही पराइकोक पंजाबी प्ले हम लोगों ने किया था, ऊंचियां लंबियां डालियां ने वेलियां, वो गाना पहली बार मदन गोपाल सिंह ने उसी थिएटर में गाया था हमारे ग्रुप के साथ। और वो भी नहीं आए हैं, कल्पना जी भी नहीं आई हैं, और मेरी भी तबीयत नासाज थी, लेकिन मैंने कहा कि अभी 1 विकेट गिरी, 2 गिरी, अब तीसरी, तो मैंने कहा कि चलिए 2 पढ़े लिखे नहीं है, एक जाहिल आदमी आ जाता है, तो आप लोग बर्दाश्त कर लीजिएगा। इप्टा के बारे में इसलिए कि पूरी ज़िंदगी का असासा बल्लाद साहनी का जब वो शनाख्त उनकी होती है, जब उनकी पहचान बनती है, तो वो इप्टा ही था, वो प्लेटफॉर्म जिसकी वजह से बल्लाद साहनी जो, और मेरे ख्याल से ज़िंदगी में कॉन्फ्रेंस लेवल भी उनका वहीं बना है। जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो कल्पना जी ने जो किताब अभी आई है उसमें लिखा है कि उनके फादर ने, मतलब
कल्पना जी के दादा ने उनको भेजा था कि जाके लाहौर से तुम वहाँ के जासूसी करो कि ये आदमी करता क्या है, मतलब ये क्या है, ये जो नाटक वाटक है, एक्टिंग है, ये तो बहुत ही बुरी चीज़ है, हमारा कारोबार देखना है कि उसको ये करना है। तो ये गए थे जासूसी करने के लिए कि मैं अपने फादर को सब बताऊँगा। और वहाँ जाके ज़ुबैदा में छोटा सा रोल जब उनको कहा बल्ला जी ने कि तू भी कर ले, तो फिर उन्होंने कहा कि इधर सब कुछ बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया, फ्यूचर बहुत अच्छा होगा यहाँ पर। तो ये जासूस थे भीष्म साहनी जो जिन्होंने पहली ही जासूसी में दगा कर दिया अपने फादर के साथ। और बहरहाल इन दोनों भाइयों ने जो कुछ किया, और मेरा जो बहुत अच्छा रिश्ता रहा भीष्म जी से कि मेरे खुशकिस्मती है कि उनके सारे नाटकों में मैंने रोल किया है, छोटे छोटे रोल मैं करता था, छोटा आदमी था। और उनका एक जो सुपरहिट प्ले हुआ कबीरा खड़ा बाज़ार में, वो बहुत ही टची हो गए थे, बड़े इमोशनल हो गए थे। बल्कि एक दिन तो उन्होंने कहा कि मैं जमुना में जा रहा हूँ, इसके साथ कूद जाऊँगा, क्योंकि ये 8 जगह से वापस आ गया है। और फिर उस नाटक को हमने कहा कि चलो कुछ करते हैं। तो ये हुआ कि जब इसको कबीर के ऊपर है तो भोजपुरी और पुरबिया में कर दिया जाता है, तो वो कहने ये भी कर लो। फिर हमने कहा इसमें कबीर के गीत डाल देते हैं कुछ, ये भी कर दो। फिर म्यूज़िकल बनाते हैं कि ये भी कर लो। तो बहरहाल वो जब नाटक बना तो कुछ और ही था। और भीष्म जी बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और खुश थे, और पंचानन पाठक की ज़बरदस्त उसमें म्यूज़िक थी। और वो दिल्ली का पहला प्रोसेनियम प्ले हुआ जिसके 183 नॉन स्टॉप शोज़ हुए थे। तो ये भी भीष्म जी की किस्मत में था। और मुझे ये कहते हुए फ़ख्र होता है कि उसका जो पुरबिया ट्रांसलेशन था वो मैंने किया था। तो भीष्म जी से बहुत सारे रिश्ते थे इस तरह से, और बड़ी बेतकल्लुफ़ी थी। और लाड प्यार का आलम तो उनका ये था कि हम किसी शादी ब्याह में भी जाते थे तो वो चुपके से पैग लेकर आते थे, तेरे वास्ते है, ले ले। तो लगता था कि भीष्म जी क्या है तो, लेकिन वो बड़े आदमी थे, बड़ा दिमाग था, लाड प्यार करने का उनका अपना ही एक नज़रिया, एक जाविया था। तो सोचता हूँ कि बल्ला जी तो उनसे भी ज़्यादा महान रहे होंगे, उनसे अगर मैं मिलता तो कुछ यादों में न जाने क्या क्या होता। तो मुझे इप्टा के हवाले से मैं आपसे बात करूँगा। हम जानते हैं कि 1942 में जब इप्टा वजूद में आया तो मुल्क के हालात बहुत अजीब गरीब थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर का ज़माना था, कुछ मुल्क कहाँ जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्विट इंडिया और भारत छोड़ो जैसे जो है नारे लग रहे थे। बंगाल में कहर छाया हुआ था और नौकरियां कहीं नहीं मिल रही थी। अंग्रेज़ मुल्क छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, आज़ाद होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। और फिर जो है ज़ात पात के इश्यूज़ भी सामने आ रहे थे। तो बहुत सारी जो है कल्चर जो तंजीमें थीं वो एकजुट होने लगीं, और उसी में ये वजूद में आया। तो मैं वो सब ऊपर का छोड़ कर यहाँ से शुरू करता हूँ कि 20वीं सदी की चौथी दहाई के शुरू में मुल्क बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा था। आज़ादी की जद्दोजहद, बंगाल का कहत, विश्व महायुद्ध, फासिस्ट ताकतों का कहर वगैरह वगैरह, ये सब सारे बहुत सारे इश्यूज़ थे। इन्हीं मुश्किल हालात में बेदारी ने लोक संगीत, लोकगीत, लोक परंपरा और विजुअल आर्ट्स की मदद से आम लोगों तक पहुँचने का एक सशक्त माध्यम बनाया इप्टा को। इप्टा यानी इंडियन पीपल थिएटर। अच्छा, उस ज़माने में समाज में चेतना जगाने और आपसी भाईचारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो फसादात वगैरह की चीज़ें जो हैं, और ये हिंदू मुसलमान सिख इश्यूज़ और फिर ये स्टेट के इश्यूज़ सामने आ रहे थे। तो एक और पंजाबी, बड़े दिमाग का पंजाबी, बॉम्बे के अंदर ड्रामे करता, 8 ड्रामे उसने किए पृथ्वीराज कपूर ने, और पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और तकरीबन 14 लाख लोगों ने उनके अलग अलग ड्रामों को देखा। उसमें ज़्यादातर दिलों को जोड़ने का ही मैसेज था। जितने भी नाटक उनको आप देखेंगे, शकुंतला पहला नाटक था जिसके 728 शोज़ हुए, उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ, हर नाटक के 500, 800, 1800, 1700 शोज़ हुए, और झोली फैला कर चंदा जमा करते हुए। तो वो जो पृथ्वी थिएटर था वो भी उतना ही कमिटेड था, और ये साथ साथ ही हुए। 1944 में पृथ्वी थिएटर बॉम्बे में बनता है पृथ्वीराज कपूर का, और 1942 में इप्टा बनता है। समाज में चेतना जगाने, आपसी भाईचारे को बनाए रखने के मकसद से 1944 में पृथ्वीराज कपूर ने बम्बई में पृथ्वी थिएटर कायम किया। इससे एक साल पहले 1943 में 25 मई को बम्बई में इप्टा की स्थापना बाकायदा की गई। इप्टा की पहली कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन भाषण में प्रोफेसर हेरेन मुखर्जी ने कहा था, मैं चाहता हूं कि आप सब जो कुछ भी आपके अंदर है, आपके पास है, जो सबसे अच्छा है, उसे कौम के हवाले कर दें। वो कौम जो इतने लंबे अरसे तक दबा कर रखी गई है, लेकिन जो अपने असली रूप में शानदार ढंग से वापस आ रही है।
रचनाकार और कलाकार आओ, आओ अदाकार और नाटककार आओ, आओ तुम सारे के सारे लोग आओ जो अपने हाथ से या अपने दिमाग से काम करते हो, आओ और अपने आप को संघर्ष, आज़ादी, समाजी इंसाफ का नया समाज बनाने के लिए देश पर कुर्बान कर दो। अनकोट। इप्टा की शुरुआत के दौर में आम कलाकारों को इससे दूर रखने के लिए फासिस्टों की एक मुहिम चलाई गई। ये बात आम करने लगे कि इप्टा कुछ और नहीं बल्कि इसका मकसद लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ना और कम्युनिस्ट पार्टी में भर्ती करना है, इसके अलावा इसका मकसद कुछ भी नहीं है। इसके जवाब में 6 जनवरी 1945 को बल्लासानी, जो इप्टा ज्वाइन करने के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और इप्टा के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे थे कि इसकी और शाखें बनाई जाएं, बल्लासानी ने 6 जनवरी 1945 को एक बयान जारी किया था और साफ तौर से कहा था, कोट, इप्टा ना तो किसी राजनीतिक संस्था से और ना किसी गुट से जुड़ी है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां सभी राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोगों का स्वागत है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने की अकेली शर्त है देश प्रेम और अपनी तहजीबी विरासत पर फख्र। अनकोट। नीरज सेन ने एक ज़माने तक इप्टा के सेक्रेटरी रहे और इससे करामत बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। इप्टा के हवाले से उन्होंने कहा था, आंदोलन तभी जिंदा रहेगा जब जनता के कलाकार अपने आप को जनता से जोड़ें, वो अपनी कला के ज़रिए जो कुछ भी बेहतर है, सेहतमंद है, लड़ाई लड़ें, वो जनता से सीखें, वो उन कलाओं को सीखें जो जनता के पास हैं, जिन्हें जनता से जुड़ी हुई है। अनकोट। तारीख़ इस बात की गवाह है कि जब किसी बामकसद या बामानी तंजीम या ऑर्गेनाइजेशन पर हुक्मरानों ने जुल्म ढाए और वो और मजबूत हुई है। इप्टा पर भी मजालिम की एक लंबी दास्तान है। इस सिलसिले में इप्टा के फाउंडर मेंबर और मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर सलील चौधरी ने अपनी मेमोयर्स में लिखा है, 1943-44 में जब हमने इप्टा शुरू किया था, उस वक्त अभिव्यक्ति के लिए हमारे पास सिर्फ चबूतरे और गलियों के नुक्कड़ के अलावा और कुछ भी नहीं था। आकाशवाणी के दरवाजे हमारे लिए बंद थे। पहले अंग्रेज़ों ने और बाद में कांग्रेस ने हमारे गानों और नाटकों पर पाबंदी लगाई। हम लोग अंडरग्राउंड हो गए, कुछ साथी जेल में भी गए और हमारे कुछ साथी मारे भी गए। अनकोट। इन चंद बयानात की रोशनी में इप्टा की ताकत का अंदाज़ा बखूबी होता है। इप्टा अपनी शुरुआती दौर में ही सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट का एक प्लेटफॉर्म न रहकर एक तहरीक, एक आंदोलन की शक्ल अख्तियार कर गया था। देखते ही देखते हर जानिब से तरक्की पसंद यानी प्रोग्रेसिव इसके साथ आते गए और जुड़ते चले गए और इप्टा एक कारवां की सूरत अख्तियार कर गया। इप्टा के इस इब्तदाई कारवां में जो लोग शामिल हुए, उनके अगर नामों की लिस्ट बनाई जाए तो मेरे ख्याल से वो शामिल हो जाएगी, लेकिन चंद नाम मैं पढ़ देता हूँ जो कि आपको अंदाज़ा होगा कि कौन लोग थे जो इप्टा में आए। तकरीबन पूरे हिंदुस्तान के सारे ही प्रोग्रेसिव लोग इसमें गए थे। अनिल डी सिल्वा, ये एक लड़की थी जो कि श्रीलंका की रहने वाली थी और यहाँ बेंगलोर में पढ़ने आई थी और इसको वो सारे मूवमेंट से इतनी इन्वॉल्व हो गई कि यहीं रहने का उसने अहाता किया। और एक दिन वो होमी जहांगीर भाभा से मुलाकात हुई, होटल में मिलने गई, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे तो देखा वो सितार बजा रहे हैं, तो हैरान हो गई कि होमी भाभा सितार। तो उनसे कहा कि मैं चाहती हूँ कि सारे कलाकार जुड़ें, एक साथ बैठें और ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहती हैं। तो ये होमी भाभा, जहांगीर भाभा का दिया हुआ नाम था इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन। तो ये लड़की थी जो 20 साल की लड़की थी, अनिल डी सिल्वा, और इसी ने खाका बनाया कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए। अनिल डी सिल्वा, होमी जहांगीर भाभा, ख्वाजा अहमद अब्बास, शंभु मित्रा, ऋतिक घटक, उत्पल दत्त, कृष्णचंद, विमल रॉय, मुल्कराज आनंद, कुस्सिया जैदी, अली सदा जाफरी, बिपिन हजारिका, इस्मत चुगताई, मखदूम मोहिउद्दीन, सज्जाद जहीर, उपेंद्र नाथ अश्क, मजरू सुल्तानपुरी, नेमीचंद जैन, अमृतलाल नागर, ए.के. हंगल, पी.सी. जोशी, एस.एम. सत्यू, वामिक जौनपुरी, संजीव कुमार, विश्व मोहन आदिल, सागर सरदी, गुरशरण सिंह से होते हुए एक बहुत तवील फहरिस्त है। और इप्टा के आगाज़ के सफ़र की एक मुख्तसरन अगर मैं अर्ज़ करना हो तो 1936 से 1947 तक के दौर में बेदारी, जागृति और उथल पुथल का दौर कहा जाना गलत ना होगा। सेकेंड वर्ल्ड वार ने दुनिया के बारूद की ढेर पर बैठाने पर मजबूर कर दिया था। 1936 में लखनऊ में तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन कॉन्फ्रेंस PWA में कई सारे इस तरह के सवाल उठाए गए। बंगाल में अकाल, भारत छोड़ो आंदोलन और उसी के साथ बंगाल में कई दूसरे आंदोलनों ने जहनों को झिझोड़ कर
रख दिया था। 1940 में इन्हीं आवाज़ों से मुतासिर होकर कॉमरेड ज्योति बसु, निखिल चक्रवर्ती, रेणु राय और चित्त मोहन वगैरह ने यूथ कल्चरल इंस्टीट्यूट बंगाल में बनाया था, जो पूरे बंगाल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहा था। इसी की बुनियाद रखी और ये काम करने लगा। इसका काम म्यूज़िक, डांस और थिएटर के मंचन के सहारे लोगों को अवेयर करना था ताकि एक हमवार माहौल बन सके। 1942 में रामानंद चट्टोपाध्याय, सुभाष मुखोपाध्याय और विष्णु डे ने एंटी फासिस्ट राइटर्स एंड आर्टिस्ट फोरम की बुनियाद रखी और ये भी बंगाल के और उड़ीसा में काफ़ी काम इन्होंने शुरू कर दिया। इसी ज़माने में रेणु राय ने की रहनुमाई में कल्चरल स्क्वाड के नाम से एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया। ये सारी तंजीमें गांव-गांव में जाकर छोटी छोटी टोलियां बनाकर लोगों के सामने अपना दृष्टिकोण रखती और इस तरह से मुल्क की आज़ादी की बात भी होती और अपनी आइडेंटिटी की बात भी हुआ करती थी। जोश से भरे नौजवानों की टोलियां गीतों, डांस, म्यूज़िक और थिएटर के माध्यम से अपने ख्यालात आवाम के सामने पेश किया करते। सिर्फ 2-2.5 साल की मेहनत के बाद लोगों में बेदारी आने लगी। इसी बेदारी के नतीजे में 1941 में श्रीलंका की रहने वाली एक नौजवान लड़की अनिल डी सिल्वा ने, जो बेंगलोर में रहती थी, इप्टा की बुनियाद रखी। अनिल डी सिल्वा के जहन में एक खाका था कि ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिससे सारे कलाकार, लेखकों को एक प्लेटफॉर्म पर ले आए। इसी ज़माने में उसकी मुलाकात मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से हुई, जिन्होंने इप्टा नाम दिया, जो उसको पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद मशहूर पेंटर चित्त प्रसाद ने अपनी शाहकार पेंटिंग कॉल ऑफ ड्रम्स इप्टा के हवाले कर दी, जो इप्टा का लोगो बना। 1942 में इप्टा के सेक्रेटरी अनिल सिल्वा बेंगलोर से बम्बई आ गई और बम्बई में उसने ख्वाजा अहमद अब्बास से मुलाकात की और उनसे कहा कि आप सभी लोगों को जानते हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, राइटर्स हैं, गीतकार हैं, म्यूजिशियन हैं, हम एक मीटिंग करें और इस मामले को उन सब के सामने रखा जाए और उनकी मदद की हमें ज़रूरत है। इप्टा का खाका उनके सामने रखा गया। बम्बई की सड़कों पर नारे गूंज रहे थे, क्विट इंडिया और डू और डाई। इसी के साथ तरक्की पसंदों को हाशिए से बाहर रखने की कोशिश भी काफ़ी तेज़ी से की जा रही थी। इस हंगामी दौर में चंद बरस पहले शिव प्रसाद सिंह चौहान ने एक लेख लिखा था जो काफ़ी चर्चा में था, कोट, कि अगर हिंदुस्तान में यूरोप के यूनिटी थिएटर, अमेरिका के रेवोल्यूशनरी थिएटर या चीन के पीपुल्स थिएटर की तर्ज पर अपना थिएटर होगा तो हम बहुत जल्द ज़हनी तौर पर अपाहिज हो जाएंगे। अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो हम ज़हनी तौर पे बहुत जल्द अपाहिज हो जाएंगे। हमें अपनी लोक परंपराओं की हर हालत में हिफाजत करनी होगी, वरना हमारी पहचान बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। और ये लेख जो था शिव प्रसाद चौहान का, ये बहुत ज़्यादा हर महफिल में डिस्कस हो रहा था और तरक्की पसंद जितनी भी तहरीकें हो रही थी उसमें इसको बार बार कोट किया जाता है कि ये बहुत ही चैलेंजिंग जुमला है और इस पर सोचना चाहिए कि हम रहेंगे क्या, सारा इंग्लिश तहजीब हम पे थोपी जा रही है। बहरहाल ये भी एक मामला था उसमें रखा है। इसी गहमा गहमी में 25 मई 1943 को बम्बई में बहुत से हम ख्याल लोग एक छत के साए में जमा हुए और ये ख्वाजा अहमद अब्बास ने अनिल डी सिल्वा के कहने पे किया था। इस जमघट में एक मुबाहिसे ने शक्ल अख्तियार कर ली, जिसमें के मंथन से बिर आखिर बाज़ाब्ता तौर पर इप्टा के आगाज़ का ऐलान उसी छत के नीचे किया गया। इसी दिन एक नारा बुलंद हुआ, हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स के असल हीरो अवाम हैं, और ये संकल्प लिया गया कि आज से राष्ट्रीय सांस्कृतिक आंदोलन का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ होता है। इस तरह लोग आते गए, कारवां बनता गया और इप्टा खुरदुरी ज़मीनों को हमवार करता आगे बढ़ता रहा। इप्टा के पहले प्रेसिडेंट मजदूर नेता NM जोशी थे। जनरल सेक्रेटरी बनी अनिल डी सिल्वा, जॉइंट सेक्रेटरी बने विमल राय और सिंगर और मशहूर म्यूजिशियन थे। खजांची